नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। तो पंजाब पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया है। पंजाब के डीजीपी ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो आपको सुनवाते हैं। सानू कुछ हैंड ग्रेनेड्स रिकवर हुए हैं, कुछ कैट्रिजेस रिकवर हुए हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट recovery is of a what we call a tiffin box bomb. Tiffin box bomb, a tiffin box, what we will call a improvised explosive device. So it is in a children's बच्चियां दे एक so there's an improvised explosive device, एक bomb ਨੂੰ एक बच्चियां दे plastic दे in a children's tiffin box. It has been a entire IED, a bomb has been created in a plastic tiffin box. It's a double-decker tiffin box. So this was recovered last evening, करीब 6:15 कल शामी in Amritsar, and this was in village. This was in village near village Daleke and Lapoke Thane de vich. So now this IED, I mean, our assessment is that this bomb has been delivered through a drone from across the border. And kal ek sarpanch san ek pind de, there was a sarpanch who called up that there was some drone movement last night. Some sounds were heard on the, yesterday was 8th, the 7 tarik di 7 or 8 di darmiyani raat, there was some sounds which were heard. And there was some sound of a drone, and then it was also reported that there was a little thud, कोई थोड़ी किसी चीज़ दे गिरन दी आवाज़ आई। उधे बाद उन्होंने दसिया, उधे बाद फिर कहते कि वो ड्रोन शायद वापस चला गया after delivery of the consignment. Then a search operation was mounted in a couple of villages of the area, बच्ची विंड, सोहरा, डालके. तो फिर कुछ इनपुट आई कि उत्थे कोई बैग, सस्पिशियस बैग पे आया. Then there was another call, some inputs were received. So there was a bag which had foam packing. It was like heavily, we will show you some photographs which will show कि it was in ਜਿਹੜੇ foam ਦੇ packing ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. And from that bag, once it was recovered, there were pouches in 7 foam pouches numbered 1 to 7. So when it was opened, there was one tiffin box, as I mentioned. There were 5 hand grenades, and there were 100 rounds of 9mm pistol. So we have called the NSG team. We have called the NSG team, which is presently looking into that. So this IED was jada tiffin box siga, onu it was properly kept in safe custody by digging a pit and all that, because we suspected कि it could go off. So onu properly secure kita gaya, onu rakhya gaya. Then we got in touch with the NSG, sent them a requisition. So National Security Guard team has arrived late last night, early morning they came, and they have started their work. And so they have given us a preliminary report about the IED. So what they have told us is that this IED जड़ा bomb है, ये बड़ा it's sophisticated bomb है. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 about 2-3 kgs of RDX has been. This is what their preliminary assessment has shown, that it has about 2-3 kgs of RDX explosive, and this is confirmed. And there are initiating mechanisms ਹੁੰਦੀਆਂ bomb ਦੇ ਵਿੱਚ, and there are 3 types of initiating mechanisms. So it has a switch mechanism. It has a switch mechanism कि ਉਹਨੂੰ ਜੇ switch ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ on off type ਕਰਕੇ, and probably if you want a timed explosion, some kind of a time bomb kind of a thing. So there's a relay mechanism, and then there is also so relay mechanism puri hai, and then there is a spring also. There is a spring mechanism also. So with once that spring is released, again the bomb can go off. And the third is a magnetic mechanism. So there are 2 magnets, and we'll show you some photographs of those 2 magnets also. So if the box is tilted, je box nu kuch mishandling hoegi, onu tilt karonge, so dono those magnets will there are 2 U-shaped magnets, and they will get connected, and the circuit will get completed, and that bomb, tiffin bomb, will go off.
So there is a printed circuit board also. एक printed circuit board PCB भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ box 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ, which can be used as a receiver. ਜੇ ਤੁਸੀਂ remotely ਉਹਨੂੰ activate ਕਰਨਾ ਹੋਏ bomb ਨੂੰ, so for remote activation of the IED, I mean you can by a command mechanism, ਜੇ ਤੁਸੀਂ phone ਦੇ through ਜਾਂ ਕੁਝ, so there is a sender and a receiver if you want to send a signal. So 3 detonators have been found in the 3 detonators ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ. There is a power source, there is this Energizer company, and this is so there are 2 9-volt Energizer brand cells which has been recovered. This is for the power source. So all these components have been assembled very meticulously with. तो पंजाब पुलिस को आज बड़ी सफलता हासिल हुई है क्योंकि पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम हो चुकी है। अमित कुमार संवाददाता इस समय चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, एक बड़ी साजिश थी पाकिस्तान की जो कि आज पंजाब पुलिस ने नाकाम कर दी। हालांकि 15 अगस्त से जोड़कर इसको देखा जा रहा है, क्या जानकारी है और अभी क्या अपडेट है? लगता है आवाज़ नहीं आ पा रही है, लेकिन वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो कि आज साजिश को नाकाम किया गया है। ड्रोन टिफ़िन बॉक्स फेंक कर वापस चला जाता है क्योंकि टिफ़िन बॉक्स की शेप में विस्फोटक को भेजा गया है और वो भी ड्रोन के ज़रिए। जैसे ही ड्रोन पहुंचता है विस्फोटक को फेंक दिया जाता है और ड्रोन वहां से वापस चला जाता है। 7 से 8 अगस्त के बीच रात को लोगों ने ड्रोन जैसी आवाज़ें सुनी थी। अमित संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी 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 अमित, बड़ी साजिश पाकिस्तान की नाकाम हो चुकी है। हैंड ग्रेनेड पुलिस ने बरामद किए हैं, अभी अपडेट बताइए। देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना होगा। सिर्फ हैंड ग्रेनेड नहीं, जो सबसे बड़ा सवाल या हम कहें सबसे खतरनाक चीज थी वो थी जो टिफिन बॉम्ब मिला है। करीब 2 से 3 किलो RDX था उस टिफिन के अंदर, और एक जो बहुत ही बच्चों के टिफिन के तौर पे रखा गया था जिसे कहीं पे भी प्लांट किया जा सकता है। देखिए, एक टिफिन ऐसी चीज है जो आमतौर पे इग्नोर कर दिया जाता है, और वो भी उन जगहों पे जहां पे जैसे अगर हम बोले ये बच्चों को टारगेट करने की कहीं ना कहीं साजिश नजर आ रही थी। अब जो जानकारी दी गई है कि बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बॉम्ब था ये, कि मतलब इसमें कई लेवल सिक्योरिटीज एक तरह से कि इस बॉम्ब से टैंपर करने पे एक्सप्लोड हो सकता था। इस बॉम्ब को अगर हिलाया जाता है तब भी एक्सप्लोड किया जा सकता था। वहीं 2 से 3 किलो एक RDX एक किसी भी बड़ी बिल्डिंग को गिराने में सक्षम है। तो अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा रिस्क फैक्टर ये एक बॉम्ब होता अगर ये हमारे बोलते हैं टेररिस्ट मॉड्यूल्स के हाथ लग जाता। पंजाब पुलिस की एक बड़ी कामयाबी ऑल ओवर देखेंगे, उनकी सतर्कता भी है, उसके बोल सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं रोल रहा है। पर खुद DGP दिनकर गुप्ता ने कहा है कि ये अकेला नहीं है, ऐसा उनको संकेत मिले कि ऐसे और भी कई पैकेजेस डिलीवर किए गए हैं। अब ये देखना होगा कि क्या उनको समय रहते रिकवर किया जा सकता है या फिर एक संदेह ही है। पर हाँ, सिक्योरिटी जरूर बढ़ा ली गई है, सिक्योरिटी जरूर बीफ अप कर दी गई है, क्योंकि जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी के आसपास माहौल बनता है तो ऐसा ज्यादातर देखने को मिलता है कि माहौल ज्यादा बिगड़ रहा है, तो उसके लिए सिक्योरिटी बीफ अप कर ली जाती है। और ऐसे में इतना बड़ा एक बॉम्ब हाथ लगना एक अच्छा संकेत है कि कहीं ना कहीं पुलिस की मुस्तैदी काम आ रही है। जी, अमृतसर के जो लोग हैं उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि उन्होंने ड्रोन की आवाज़ें सुनी थी, जिसकी वजह से ही कहा जा रहा है कि ड्रोन के जरिए उस टिफिन बॉक्स को फेंका गया था और टिफिन बॉक्स फेंकने के बाद तुरंत वहां से ड्रोन गायब हो जाता है। अमित, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप मेरी? लगता है आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पुलिस ने सतर्क रहने को कहा है कि प्रदेश के सभी लोग इस समय सतर्क रहें। बाकायदा गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं जो कि तस्वीरों में भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये वो तस्वीरें हैं जो विस्फोटक आज बरामद किया गया है। एक बड़ी साजिश पाकिस्तान की यहाँ पर नाकाम हो चुकी है। फिलहाल NSG को बुलाकर IED को रिजर्व कर दिया गया है।
अमित संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, वहां के जो लोग हैं, अमृतसर के जो लोग हैं, उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि उन्होंने ड्रोन की आवाजें सुनी थी। ड्रोन आता है और टिफिन बॉक्स को फेंक कर गायब हो जाता है। देखिए, जो साबका पंचायत थे, जो वहाँ के जो पंचायत के थे, उन्होंने जानकारी दी कि एक ड्रोन की आवाज आई थी उन्होंने। तो क्योंकि बॉर्डर एरिया में खुद आम लोग भी बहुत ज्यादा सतर्क हैं कि पुलिस की तरफ से उन्हें पहले इंटीमेट कर दिया गया कि अगर आप ड्रोन की आवाज सुनते हैं तो तुरंत इन्फॉर्म किया जाए। तो एक ड्रोन की आवाज सुनाई थी, उसके फिर एक बड़े किसी सामान की गिरने की आवाज आई। तुरंत लोग हरकत में आते हैं, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। और जब वो बैग, उन्हें एक सस्पिशियस बैग मिलता है, जब लोग इधर उधर देखते हैं कि आखिर ये तो उन्हें एक बैग नजर आता है। उसके पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। पुलिस आके जब बैग खोलती है तो उन्हें करीब 100 के करीब गोलियां मिलती हैं उसके अंदर। जो 9mm पिस्टल के राउंड है वो मिलते हैं, 7 हैंड ग्रेनेड। देखिए, जो चीज ध्यान से देखने वाली है कि इन सभी हैंड ग्रेनेड्स को करीब 4 से 5 लेयर के अंदर पैक करके रखा हुआ है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये हैंड ग्रेनेड डैमेज ना हो जाए, कोई सिनेरियो खराब ना हो जाए, कहीं ना कहीं कोई वो फट ना जाए समय से पहले। तो वो माहौल सा बना हुआ था उस चीज को देखते हैं। और साथ ही साथ ये टिफिन बॉम्ब मिलता है। देखिए, जो टिफिन बॉम्ब अगर आप देखें तो इसमें एक बहुत ही प्यारा टिफिन बॉम्ब दिखने के लिए। देखिए, टिफिन डबल डेकर है, 2 लेयर्स का टिफिन बना हुआ, अंदर काफी कुछ चीजें हैं, मैग्नेट्स लगे हुए, पावरफुल मैग्नेट्स है 3। अगर उसमें बैटरियां लगी हुई हैं, जो चीज बताई जा रही है हमें कि उन बैटरियां मेड इन मलेशिया है। मतलब आप देख सकते हैं मलेशिया से सारा सामान कहीं ना कहीं एक हिंट दिया गया है। वही ग्रेनेड्स की मार्किंग के ऊपर पूछा गया तो बोले उनके पास सीरियल नंबर्स है, पर ऐसा ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो कहाँ से है। उसके ऊपर ऑफकोर्स तहकीकात जारी है। पर ऑल अगर हम बात करें तो सिनेरियो काफी अच्छा एक तरह से हम कहें कि देखने वाले, क्योंकि पंजाब पुलिस ने समय रहते एक बड़ा हादसा टाल दिया है। हाँ, ऑफ कोर्स पुलिस सतर्क हो चुकी है अपनी तरफ से कि कोशिश कर रही है कि ऐसे और कोई इंसिडेंट सामने ना आए। पर उन्होंने खुद से लोगों को जरूर एक तरह से एक्टिव रहने के लिए कहा है। उन्हें बोला है कि अपने आसपास अगर आप कोई भी संदिग्ध चीज देखते हैं तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें, उनसे जितना हो सके दूरी बनाएं, उनसे कोई टैंपरिंग ना करें। तो क्योंकि 15 अगस्त पास आ रही है तो ये सब चीजें जरूर लोग हो जाते हैं, पुलिस भी एक्टिव हो जाती है। कहीं ना कहीं ये लगातार कोशिश रहती है टेररिस्ट की कि जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी जैसे हमारे कोई इंटरनेशनल दिन आते हैं तो उस दिन कोई ना कोई माहौल खराब करने की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। तो उसी चीज को मुस्तैदी है। पर एक और बात जो ध्यान में रखने की है कि अमृतसर में ही पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्रोग्राम होने वाला था। तो आप देख सकते हैं उस लिहाजे से भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर था। ऑफकोर्स सीएम सिक्योरिटी अपनी जगह लगातार मुस्तैद है, पर ये उस एंगल को भी कहीं ना कहीं नकारा नहीं जा सकता है कि पंजाब सीएम पर भी हमला करने की कोशिश शायद ये इस बॉम्ब के जरिए की जा सकती थी। बिल्कुल अमित, एक चीज और समझेंगे कि ये ड्रोन वाली साजिश है। हमने अभी कुछ दिन पहले देखा था कि जम्मू कश्मीर में लगातार ड्रोन भेजे जा रहे थे, वहां पर लगातार 5 से 6 दिनों तक ड्रोन भेजे गए थे और बताया ये भी जा रहा था कि वो निगरानी की जा रही है या फिर वहां पर जो भी किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से उन ड्रोन को भेजा जा रहा था। तो उससे कनेक्ट करके क्या इसको देख सकते हैं कि वहां पर साजिश में कामयाब नहीं हो सके, इसीलिए पंजाब तक पहुंच गए? देखिए, ये एक कयास लगाई जा रही है कि वहां से भी लिंक किया जा रहा है। देखिए, आमतौर पे अगर हम एंट्री पॉइंट की बात करते हैं, अगर भारत के अंदर कुछ भी भेजना होता है तो पंजाब के बॉर्डर एरिया को भी एक सेंसिटिव एरिया माना जाता है, जहां से काफी हद तक हथियार पाकिस्तान अपनी तरफ से एंटर करता है। हाँ, वहां पे कामयाबी नहीं मिली तो उनकी तरफ से यहाँ पंजाब से एंट्री की कोशिश जरूर की जा रही थी। पर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पुलिस की मुस्तैदी और हमारे जवानों की मुस्तैदी ने इस चीज को समय रहते रोक दिया है। पर हाँ, कई ड्रोन्स की आवाज लोकल भी बार बार बताते रहे, कंप्लेन की जा रही है, उन्हें बताया जा रहा है कि ड्रोन्स नजर आते हैं पर हर एक बार कार्रवाई की जाती है तो ड्रोन्स गिरा दिए जाते हैं या फिर उनके ऊपर जो भी सामान होता है उनको कब्जे में कर लिया जाता है। पर एक कोशिश जरूर लगातार जारी है और जब तक शायद 15 अगस्त नजदीक आती रहेगी तब तक ये कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जाएंगी। पर ये देखना होगा कि क्या ऐसी कोई बड़ी और कयास लगाई जाती है उनकी तरफ, क्योंकि अगर हम इस पहलू को देखें कि करीब 2 से 3 किलो RDX, जो कि एक बहुत बड़े हमले को अगर हम कहें कहीं ना कहीं अंजाम देने के लिए काफी होता है। कई फैक्टर्स इंक्लूड किए जा रहे हैं कि ये किसी हाई प्रोफाइल टारगेट के लिए भी हो सकता है, जहां से हम बोल सकते हैं कि शायद पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को टारगेट किया जा रहा है, या फिर ये एक लोगों में दहशत बनाने के लिए एक टेररिस्ट ब्लास्ट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता था। पर वो तो बात की बात है। पर हम कह सकते हैं पंजाब पुलिस को कामयाबी मिल चुकी है और ये जिस चीज के लिए भी इस्तेमाल होना था उसके लिए ये एटलीस्ट अब नहीं हो पाएगा। अमित, यहाँ पर एक चीज और है कि लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाएगी। हालांकि डीजीपी की तरफ से कहा तो यही गया है कि जो लोग ट्रेन में इस समय सफर कर रहे हैं या फिर बस में इस समय सफर कर रहे हैं उनको सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, खासकर 15 अगस्त तक, क्योंकि ये जो साजिश है इसको नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, भीड़ वाली जगह पर भी साजिश की कोई तैयारी की जा सकती है। देखिए, यही एक सबसे बड़ा फैक्टर है। देखिए, मैं जब इस टिफिन बॉम्ब की बात करता हूं तो ये देखिए ऐसी चीजें जो कहीं पे भी छोड़ी जा सकती है।
अगर मैं इसको हम एक एग्जांपल लें कि बच्चों के स्कूल में भी इसको कहीं न कहीं प्लांट किया जा सकता है, क्योंकि आम तौर पे बच्चे टिफिन स्कूल्स में रह जाता है, तो कहीं न कहीं कई एंगल कंसीडर किए जा सकते हैं। एक मार्केट में कहीं बच्चे का टिफिन गिर गया, उसके इमेज दिखा के, क्योंकि एक बहुत जेन्युइन टिफिन लगता है। अगर आप इसे बाहर से देखें तो आप ये कह नहीं सकते कि इसके अंदर कुछ भी गलत हो सकता है, पर जब इसको खोला जाता है तब इसके अंदर के जो हम कह सकते हैं हथियार या जो बम है वो तब नज़र आता है। पर कहीं न कहीं अगर हम बोले कि जितनी ज़्यादा मुस्तैदी आम जनता रखे उतने ज़रूरी है। अगर कोई भी सस्पिशियस सामान दिखता है, चाहे वो बस में हो, चाहे गाड़ी में हो, चाहे वो सिर्फ चल ही रहे हो सड़क पे, तो उनको अपनी तरफ से एक्टिव रहना होता है। पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करने के लिए कहा गया है। क्योंकि देखिए जैसे-जैसे हमारा इंडिपेंडेंस डे पास आ रहा है, वैसे-वैसे ये गतिविधियाँ बढ़ती रहेंगी और माहौल खराब करने की कोशिश लगातार बाहर दूसरे देशों की तरफ से की जा सकती है। अमित, सिक्योरिटी सिर्फ अगर हम पंजाब की बात करें तो हालांकि पहले से ही बढ़ाई जा रही थी और सरकार की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी। जाहिर सी बात है 15 अगस्त से स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी होती है, अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो सिक्योरिटी होती है। लेकिन अब ज़रूरत है और ज़्यादा सिक्योरिटी की। हालांकि पुलिस भी इस समय तैयार है पूरी तरीके से पंजाब की। और क्या क्या तैयारी की जा रही है आगे की सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है स्वतंत्रता दिवस पर। देखिए जैसे अभी बॉम्ब्स मिले हैं तो हम कंसिडर करते हैं सभी विलेजेस, जो हम कहें जो भी बॉर्डर के पास गांव है पंजाब के, उन सभी में सख्ती बढ़ा दी गई है। लगातार स्वीप्स की जा रही है, लगातार लोगों से बात की जा रही है कि क्या आपने कोई आवाज सुनाई दी, क्या कोई ड्रोन नजर आया, हर एक चीज का पहलू का ध्यान रखा जा रहा है। वहीं अगर हम बोले जो हाई प्रोफाइल एरियाज हैं, जैसे हमारे बाघा बॉर्डर हो गया है, जहां पर भी झंडा फहराना है, उन सभी यहाँ जहाँ पे मास गैदरिंग होनी है। देखिए कहीं ना कहीं कोरोना के चलते गैदरिंग काफी हद तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, पर फिर भी लोगों की मूवमेंट्स काफी होती है आमतौर पे। अगर हम इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं तो उन सब चीजों को देखते हुए हर एक जगह पे जहाँ पे भीड़ इकट्ठा होनी है वहां पे सिक्योरिटी जरूर बढ़ा दी गई है। और ऑफकोर्स स्वीप्स लगातार जारी है, हर एक टिप को खंगाला जा रहा है कि छोटी से छोटी टिप जो पुलिस को मिल रही है, पुलिस अपनी तरफ से उन टिप्स को जाके तक एक्टिव करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ इस समय ललन सिंह जुड़ गए हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। ललन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ENB न्यूज पर। धन्यवाद मैडम। ललन जी, एक बड़ी पाकिस्तान की साजिश है जिसको नाकाम कर दिया गया है। हैंड ग्रेनेड भेजे जाते हैं, विस्फोटक सामग्री भेजी जाती है, वो भी ड्रोन के जरिए। ड्रोन वाली साजिश एक बार फिर से पाकिस्तान की देखने को मिली। आपका रिएक्शन? काजल जी, एकदम साफ है। 15 अगस्त LOC तो इतना सख्त है कि ये घुसपैठ नहीं कर सकते और ना ही हथियार और एक्सप्लोजिव को भेज सकते हैं। तो इनका ड्रोन के द्वारा जो साजिश हो रही है, ये पहले से पंजाब के एरिया को इन्होंने अपना टारगेट बनाया है। अजनाला हुआ और जम्मू का एरिया, सांबा हुआ, इन जगहों पे ये अपने उस जगह पे ड्रोन से इन चीजों को भेज रहे हैं और फेंक रहे हैं, जिसमें स्लीपर सेल और इनके जो आतंकी लोग जो भारत के अंदर बैठे हुए हैं, जो बहुत दिनों से गद्दार किस्म के एक्शन में हैं, वो इसको लेकर और 15 अगस्त से पहले आंतरिक सुरक्षा को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। मैं इसमें बताना चाहूंगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस सतर्क है, लेकिन कुछ ऐसे जगहों पे इन्होंने गिरा दिया होगा और अपने लोगों को इन्फॉर्म किया होगा, लेकिन उससे पहले हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, मुस्तैदी के कारण, सतर्कता के कारण और इंटेलिजेंस के इनपुट के कारण ये चीजें पकड़ी जा रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर में जो NIA का 56 जगह पे छापेमारी हुई है, इन्हीं सभी कारणों से हुई है। ये वही लोग हैं जो इनको असला, एक्सप्लोजिव और पैसों से आर्थिक तरीके से मदद करते हैं। तो अभी एक बहुत अच्छी बात हुई कि पंजाब के अंदर, अभी आप एक चीज और मान लीजिए, दिल्ली का वही है, पंजाब भी है, और वाइटल पॉइंट अभी बहुत हो गए हैं। और किसान का जो आंदोलन, बिल्कुल बिल्कुल ललन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद दूसरे मुद्दे के साथ वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आज भी संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने खूब हंगामा किया, जिसके चलते संसद की रोजाना की तरह कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लेकिन OBC संशोधन विधेयक पर सरकार के साथ कांग्रेस समेत 15 विपक्षी दल हैं और उस बिल को पास करा लिया गया है। आपको बता दें कि चर्चा से पहले ही राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि संसद में सरकार OBC सूची में नाम जोड़ने का अधिकार राज्य को देने वाला बिल लेकर आ रही है, जिसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन राज्यसभा में आज एक बार फिर से सरकार और विपक्ष के बीच में सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद स्थगित कार्यवाही को करना भी पड़ा। और उससे पहले आपको ये भी बता दें कि लोकसभा में आज भी प्रश्नकाल नहीं चल पाया।
सदन शुरू होते ही जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टियों का हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। संसद की कार्यवाही और विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि इस विधेयक को पास करा दिया गया है सत्ता और विपक्ष की सहमति के बाद। पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सरकार इंट्रोड्यूस करने जा रही है और 127th अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट को हम सभी विरोध पार्टी के जितने भी नेता है और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस बिल का हम समर्थन करेंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं आज जो पार्लियामेंट में इंट्रोडक्शन हो रहा है उसी वक्त वो चर्चा करके उसको पास करना चाहिए। ऐसी चीजें पहले भी हुई है, जब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए बिल लाया गया था उसी दिन इंट्रोड्यूस हुआ, उसी वक्त पास हुआ। वैसा ही हम इसी को चाहते हैं कि वो इंट्रोड्यूस भी करे और कंसिडरेशन करके उसको पास भी करें। यही मुद्दे पे हम सभी लोग इकट्ठा होकर शांति के साथ इसका समर्थन करके इसको पास। देखिए, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा जी हो गया 2-3 दिन यहाँ दिल्ली में हैं और प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और कुछ मंत्रियों से मिलेंगे, क्योंकि असम की और भी जो समस्याएं हैं कोई डिपार्टमेंट की उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मिजोरम इशू तो अब ठंडा हो गया, इसमें कोई समस्या अभी है नहीं, फिर भी प्रधानमंत्री से मिलेंगे और चर्चा करेंगे कि आने वाले दिन में इस तरह समस्याएं और भी जो स्टेट है होना नहीं चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्योंकि हम लोग अष्टलक्ष्मी 8 स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट में, और हम चाहते हैं कि हमारा जो भाई लोग हैं उससे कभी इस तरह से घटना ना हो। वो वीडियो हमने भी देखा है, वो कह रहे हैं कि हाउस चलाइए, तो हम तो हाउस चलाना ही चाह रहे हैं, इसी के लिए हाउस बुलाया है। उनसे पहले पूछा क्या चाहते हो तो उन्होंने 3 इशू बताए, उन 3 इशू पे हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ही सहमति प्रकट की थी। पेगासस इशू पे अगर वो मंत्री के हाथों से कागज नहीं फाड़ते तो आज ये परिस्थितियां नहीं बनती, क्योंकि एक मेंबर को, माननीय मेंबर को सस्पेंड करना पड़ा और विषय आया जब माफी मांगने का तो उन्होंने कहा माफी नहीं मांगेंगे। इतना बड़ा गलत आचरण करके भी कोई माफी नहीं मांगते हैं, तो हाउस को चलाना कौन नहीं चाहता, चलाना कौन चाहते हो ना। नहीं, उन्होंने देश का कानून उल्लंघन किया है और ट्विटर जो किया है उसको हमारे कोई संबंध नहीं है। और ट्विटर के लिए जब ट्विटर के बारे में वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव कारण के लिए किया है, राहुल गांधी ठीक किया है नहीं किया, तो वो तो देश के कानून बोल रहा है। बट ओवरऑल हम जब कह रहे थे कि ट्विटर जस्ट इट इज नॉट, इट इज ए प्लेटफॉर्म एंड इफ they should post somebody here when all such things were told, and what Congress was doing, what Mr. Shashi Tharoor was doing. See, taking double standard is the nature of the Congress party, it is the DNA of. इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। कुंवर सिंह कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन आई सिंह, शुरुआत आपसे ही करते हुए, ओबीसी संशोधन बिल पास हो चुका है, 15 विपक्षी पार्टियों का समर्थन आपको मिला है, सबसे पहले रिएक्शन। जी काजल जी, बहुत
अच्छी जो कहते हैं शुरुआत हुई है संसद में। अगर इसी तरह से ये विपक्षी पार्टियां अगर शुरू से साथ देती तो जो 15 दिन का जो सत्र जो है ना बिगर चर्चा के इन्होंने निकाल दिया तो शायद कितने बिल जो है ना आम पब्लिक से जुड़े हुए पास हो जाते, मगर वो इन्होंने नहीं होने दिए। मगर जो आज जो साथ दिया है मैं इसके लिए इनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि और ये ओबीसी बिल आज इससे मतलब हमारी सरकार की मंशा साफ हो चुकी है कि हमारी सरकार सबके लिए है, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसी एसटी हो या अन्य वर्ग हो। तो ये अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये सरकार किसी एक के लिए सोचती है, और हमारी तो शुरू से सोच ही यही रही है काजल जी। हमारी कोई पक्षपात वाली या जाति धर्म वाली राजनीति कभी नहीं रही है। हमारा नारा ही ये है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम तो ये लेके चले हैं। अगर कांग्रेस पार्टी इस देश में 50 साल तो सिर्फ कांग्रेस के एक परिवार ने राज किया, बाकी अन्य समय इनके और जो पीएम रहे उन्होंने राज किया, मगर फिर भी आज इनकी स्थिति ये है कि जाति धर्म से आगे नहीं निकल पा रहे काजल जी। आप काजल जी एक चीज देखिए कि जो 15 दिन का सत्र इनने अवरुद्ध किया है, इस देश की जनता की ये गाड़ी कमाई है बड़े टैक्स के माध्यम से। नहीं, अवरुद्ध तो आज भी हुआ है, नहीं अवरुद्ध तो आज भी हुआ है, लेकिन एक संशोधन बिल पास हो चुका है, ये बहुत बड़ी बात है। इस पर पहले रिएक्शन ले लेती हूँ कुंवर सिंह जी। ओबीसी संशोधन बिल पास हो चुका है, विपक्ष की सहमति आज है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे चर्चा से पहले ही कि सरकार ये बिल लेकर आ रही है, हम इसका समर्थन करते हैं। 15 विपक्षी पार्टियां और भी हैं, वो भी इसका समर्थन करती है। कौन सी वजह थी ऐसी जो कि आपने इसका समर्थन किया? क्योंकि आमतौर पर हम सिर्फ विपक्ष को विरोध करते हुए ही देखते हैं। देखिए, यही तो बात है, सोच का अंतर है। जब जनता के हित की बात आएगी, गरीबों के न्याय की बात आएगी और भारत के जनता को लोकतंत्र पर आस्था की बात आएगी तो हम साथ हैं। आज ओबीसी पर आपने संशोधन बिल पास किया, लोकहित का मामला है, जनता से जुड़ा मामला है और गरीब पिछड़ों के न्याय का मामला है, हम साथ हैं। लेकिन जब गरीब की जनता का पैसा आप गाढ़ी कमाई जासूसी में गंवाएंगे, किसान आंदोलन में गंवाएंगे, आप बताइए। अगर ये अभी कह रहे थे कि हम जाति पात पर भरोसा नहीं करते, इनके प्रधानमंत्री जी परिचय करा रहे थे मंत्रियों का कि ये एससी से है, ये एसटी से है, ये ओबीसी से है। अगर आप परिचय ही कराना था, आप जातिवाद नहीं करना चाहते, तो आपको कहना चाहिए फलाना चीज सीट से फलाने लोकसभा सांसद है, फलाने से राज्यसभा सांसद है, ये फलाने मंत्री। तो जातिवाद का जो आप मोहड़ा बना रहे हैं, ये तो आप में कूट कर भरा, ये दुनिया ने देखा है। किसने जहर उगला, किसने कांड कराए, चाहे गोधरा से हो, आज तक का देखिए कितने नरसंहार हुए, हमने कराए हैं क्या? किन हाथ रंगे हुए हैं, ये दुनिया ने देखा है। कुंवर सिंह जी, एक और सवाल है। जिस तरह से आज आपने सहमति जताई है और ये बिल पास हो चुका है, अगर इसी तरीके से और बिलों पर भी सहमति हो जाए तो ऐसा नहीं लगेगा कि शांतिपूर्ण तरीके से और चर्चा के साथ सारे बिल पास हो गए हैं, जो कि अब तक हमने नहीं देखा है? जिस दिन से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है सिर्फ और सिर्फ हंगामा हुआ है। उससे क्या होगा, जो पब्लिक के पैसे हैं उसकी बचत भी हो जाएगी। थोड़ा उन बिलों को भी समझने की कोशिश करे विपक्ष तो कैसा रहेगा? देखिए, इस बिल को लाने से पहले नियम से सरकार लाइए। आप सरकार से एक सवाल का जवाब हमको दे दीजिए। हम प्रश्न करते हैं, हम प्रश्न लगाते हैं, हम स्थगन प्रस्ताव लाते हैं, हम चर्चा चाहते हैं, तो इनसे एक लाइन का जवाब मैं पूछना चाहता हूं कि इनके लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति कार्यसूची में शामिल क्यों नहीं करते? और एक सवाल और, इनके यदि कोई, आप कृषि बिल पर चर्चा चाह रहे थे, महाराष्ट्र के सांसद ने सवाल उठाया कि फसल बीमा का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा, तो जब आप पीयूष गोयल जी दे रहे, ये इनकी समस्या है ना कि करता कोई है, भरता कोई है, दिखता कोई है। भाई, जो जिसका मंत्री किस लिए बनाया जाता? और आपने एक सवाल किया कि अगर विपक्ष इसी तरह चाहे, हम भी चाहते हैं, हमारी भी उतनी लोकतंत्र की जिम्मेदारी, और हम भी जनता के सामने जाएंगे, लेकिन निभाएंगे नहीं। जिम्मेदारी है लेकिन निभाएंगे नहीं, जिम्मेदारी है लेकिन निभाएंगे नहीं उसको। देखो बहन जी, जब जनता चुनकर भेजती, जो सरकार में है वो आके दुनिया के सामने रोता है
कि हमारा लोकतंत्र पर हमारी आस्था नहीं है। ये हमको लोकतंत्र की परिभाषा बताएंगे जिनके 52 साल कार्यालयों में झंडा नहीं फहराया गया हो, वो लोकतंत्र पर आस्था करते और भारत पर आस्था करते। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र के लिए और जनता के लिए जो भी लाएंगे हम साथ हैं, लेकिन तानाशाही, गुंडाई, मार्शल एक्ट, संसदों को बाहर का रास्ता ये नहीं चलेगा। हम भी लोकतंत्र पर आस्था रखते हैं और जो जनता के लिए हितकर होगा हम उस पर साथ। बाकी सब बिलों में तानाशाही थी अभी तक जितने आए। आप कानून से नहीं, ठीक है, कैप्टन आई सिंह जवाब देंगे। ठीक है कैप्टन आई सिंह जवाब दीजिए। ये जो बिल है इसका विपक्ष ने समर्थन किया है क्योंकि इसका सीधा सरोकार पब्लिक से है, बाकी में तानाशाही है, भ्रष्टाचार है। जवाब दीजिए। काजल जी, इसमें भी इनको ये लग रहा था कि अगर इस पे हम हंगामा मचाएंगे तो ओबीसी समाज का वोट जो है ना कम से कम 50% के लगभग है, तो वो कहीं हमारे हाथ से न खिसक जाए, इसलिए इस पे ये मौन धारण कर लिया इन्होंने। नहीं तो ये कभी संसद में शांति से बैठे हैं और ये हमें राष्ट्रवाद बता रहे थे। अरे भाई हमारा राष्ट्रवाद हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमने देश के और इसके लिए जो है ना कुर्बानियां दी है और हमारी सोच ही देश राष्ट्रभक्ति रही है। आपकी तो अध्यक्ष का नाम की, अरे सुने बीच में ना बोले, सुने, आपकी जो अध्यक्षा है ना, उन्होंने तो अभी आके जो है ना इस देश की नागरिकता ली है ना, वो तो इस देश की नागरिक भी नहीं थी और न लेना चाहती थी। कहाँ है आपका राष्ट्रवाद? जो आपका अध्यक्ष है वो इस देश का नागरिक ही नहीं बनना चाहता था। तो आप राष्ट्रवाद हमें न सिखाएं। राष्ट्रवाद जो हमारे अंदर तो कूट कूट के भरा है, और जिसकी बात आप कर रहे हैं झंडा नहीं लगाया था, आज वो एक ऐसा संगठन है कि हर आपदा में खड़ा मिलता है, चाहे बाढ़ हो चाहे कोरोना हो, जगह जगह मिलेगा। आपका संगठन कहाँ मिला है खड़ा हुआ? कहीं मिला है? राजनीति करने जरूर आ जाता है। तो इसलिए राष्ट्रवाद की बात हमें ना सिखाएं। राष्ट्रवाद हमसे ज्यादा आप कभी नहीं सीख सकते और ना आपके अंदर राष्ट्रवाद आ सकता है। ठीक है कैप्टन आई सिंह, एक सवाल सुनिए मेरा। ठीक है कैप्टन आई सिंह, एक मेरा सवाल सुनिए। विपक्ष को आपने विश्वास में ले लिया है ओबीसी संशोधन बिल पर, जिसकी वजह से आप लोगों को समर्थन मिल गया, लेकिन जो हम संसद के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं, संसद के बाहर की तस्वीरें में अभी भी विपक्ष का विरोध बरकरार है। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कैप्टन आई सिंह, सवाल मेरा आपसे ही है। आपने जिस तरीके से 15 विपक्षी पार्टियों को विश्वास में लिया है, आप लोगों का समर्थन कर दिया है, लेकिन जो संसद के बाहर की तस्वीरें हम इस समय दिखा रहे हैं वहां पर विरोध लगातार बरकरार है। कृषि कानूनों का विरोध वहां पर चल रहा है और मंत्री रह चुकी हरसिमरत कौर भी उनमें शामिल हैं। एक बार उनको भी विश्वास में ले लें तो तस्वीर ज्यादा अच्छी होगी और सरकार की वाहवाही होगी। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। जब ये बिल पास हुआ था तो हम सिर्फ जो कौर है ना, हम सिमरत कौर हमारी उस टाइम पार्टी में थी, उस कमेटी में थी, और बिल पास हुआ था तब ये मंत्री थी। ये बिल पास होने के बाद जब इन्हें लगा कि पंजाब में सारी मंडियां जो है ना इन्हीं के माध्यम पूरी हैंडल कर रखी थी, तो इन्हें लगा कि ये अब हमारे हाथ से ये मुद्दा निकल गया, जो करोड़ों की कमाई हो रही थी वो शायद जा रही है, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया और अपना पंजाब का वोट बैंक संभालना चाह रही थी। तो हरसिमरत कौर जो है ना क्यों गई, इसके पीछे बहुत राज है, वो ही ज्यादा बता सकती है। हम भी बता देंगे मगर वो ज्यादा अच्छा बता सकती है। अब रही बात किसान बिल पे, सरकार कह रही है आइए हमसे बैठ के चर्चा करिए। आप सदन में करना चाहते हो सदन में करिए, सदन से बाहर करना चाहते हो सदन से बाहर करिए, हम आके चर्चा करेंगे। वो हंगामे से इसका सोल्यूशन तो निकलने वाला नहीं है। सरकार ने शुरू से एक बात कही है कि बिल वापस नहीं होंगे, संशोधन हम कर सकते हैं अगर आप कहोगे कि इसमें ये हमें कमी नजर आ रही है, और वो सरकार देखेगी कमी है कि नहीं है। अगर होगी तो ही संशोधन किया जाएगा, खाली कहने से, क्योंकि बिल कोई सरकार ने अकेले पास नहीं कर दिया, दोनों सदनों में बिल गया है तब पास हुआ है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास होके आया है, इतने भारी बहुमत से बिल पास हुआ है। तो इसलिए बिल जो है ना ये सोचे कि अब काजल जी में एक बोलिए काजल जी, ये सिर्फ बिल किसान बिल पर राजनीति कर रहे हैं। देश का किसान
आम किसान ये कह रहा है कि ये बिल हमारे बहुत ही हित का है। अब कांग्रेस पार्टी, अन्य विपक्षी पार्टियां और चाहे वो बादल की पार्टी हो, ये सिर्फ अपना वोट बैंक ढूंढ रही है, इसके माध्यम से और कहीं कुछ नहीं है। बिल किसानों के हित का है, किसानों के कतई ही अनहित का बिल नहीं है। कुंवर सिंह जी, बार बार यही बात कही जाती है और हम सरकार की तरफ से भी यही सुनते हैं, विपक्ष की तरफ से भी यही सुनते हैं। हालांकि ये जो सवाल अब मैं पूछूंगी, किसानों से भी पूछे तब भी वही जवाब मिलेगा, आपसे पूछूं तो भी वही जवाब मिलेगा, क्योंकि आप लोग पूरी तरीके से किसानों के समर्थन में हैं। राहुल गांधी को हम आए दिन देखते हैं, वो ट्रैक्टर चलाते हुए जाते हैं या फिर किसानों के साथ में पंचायत में नीचे ही बैठे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, सवाल पूछना ही होगा। सरकार अड़ी हुई है इस बात पर कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे, अब क्या होगा अगला कदम आप लोगों का? बहन जी, आपके माध्यम से और भाजपा के आई सिंह जी और भाजपा के लोगों से मेरा एक सवाल, ये सरकार है कि कंपनी है? संसद में कंपनी का राज है कि सरकार का? कृषि कानून पास होने से पहले अडानी के गोदानों का एग्रीमेंट हो गया कि आपको 30 साल का लीज पर लेते हैं और तमाम सैलो बन गए और 10% आपका किराया हर साल बढ़ाएंगे। तो जब कृषि कानून आने से पहले ही एग्रीमेंट हो गया, तो आप समझ जाइए कि कंपनियां चला रही हैं सरकार को या जनता की सरकार। दूसरा, इन्होंने हरसिमरत कौर बादल पर कहा, तो ये कौन सा ऐसा वॉशिंग मशीन रखे हैं कि जो इनकी पार्टी के साथ चलेगा वो गंगा साल तक उसमें बुराई नहीं थी, और जैसे ही वो जनता हो, तो इनसे एक सवाल है, नीतीश कुमार को क्या कहेंगे? उन्होंने कहा जासूसी पर जांच होनी चाहिए, तो क्या आपके सहयोग में है? एक अजीत पवार रातों रात घोटाला में आपने एनओसी दे दी, और फिर जब सरकार गिर गई तो आप बंगाल में कुछ नेता आए। ऐसे देश के अंदर नेता जो भ्रष्टाचार आपके द्वारा कहा जाता है कि भारी भ्रष्टाचारी है, फल्ला है, भाजपा में शामिल होते हैं, तो क्या भाजपा वॉशिंग पार्टी है क्या, वॉशिंग मशीन है क्या कि जो आएगा साफ सुथरा होकर निकलेगा? और एक सवाल मेरा और है कि ये कहते हैं कि किसान नहीं चाहता है। कुंवर सिंह जी, एक और सवाल का जो मैंने सवाल पूछा था, कुंवर सिंह जी, मैं जो सवाल आपसे पूछ रही थी उसका जवाब आपने नहीं दिया। सरकार का रुख साफ है कि कृषि बिल वापस नहीं होंगे। अब विपक्ष आगे क्या करेगा, क्या स्टैंड होगा अगला, इसका जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल, सरकार देखिए तानाशाह होती है और सरकार झुकेगी भी, ये देख लीजिएगा। आज किसान आंदोलन पे 9 महीने हो गए। इस सरकार के लोगों से ये कह दीजिए कि ये किसान बिल, सीएए, नोटबंदी, जीएसटी, 2 करोड़ नौकरी, स्मार्ट सिटी, बेरोजगारी पर क्यों वोट नहीं मांगते? ये वोट मांगेंगे किस पर? हिंदू मुसलमान के लड़ाई पर। ये वोट किस पर मांगेंगे? जातिवाद पर। इनसे कहिए किसान बिल पर चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ अन्य राज्यों पर किसान बिल पर जाए। बंगाल पे क्यों किसान बिल पर नहीं गए? ठीक है, क्यों तमिलनाडु पर सीए इन्होंने लागू करने की बात नहीं कही? ठीक है, तो दो मुही बात करते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। एक तरफ आप काजल जी एक देना चाहते बंद कराएं। ये गौ सेवक कमलनाथ जी की सरकार ने 15 महीने में 1500 गौशाला बनवाई थी और एक दिन में एक गाय के लिए 59 रुपए का खर्चा रखा था। इस शिवराज सिंह की गौ भक्तों की सरकार आई तो गौशाला बनना रुक गया और मात्र 1.5 रुपया एक दिन में। ठीक है, जवाब ले लेते हैं कुंवर सिंह जी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है कुंवर सिंह जी, जवाब ले लेते हैं। कैप्टन आई सिंह, अगर हिम्मत है तो कृषि कानूनों पर वोट मांगने जाइए आप लोग। बहुत अच्छी बात है। अभी जो हमारे जो मित्र कांग्रेस के बैठे, इन्होंने जो कहा, इन्हीं की जो ये कह रहे हैं उसी में इनका जवाब मिल गया इन्हें। अभी जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें इनका क्या हर्ष हुआ है कि राकेश टिकैत जो किसान नेता बने घूम रहे हैं, वो अपने गृह जिले से अपने कैंडिडेट को वोट नहीं दिवा पाए। 30 वोट वहां बीजेपी के कैंडिडेट को मिले, 3 वोट मात्र इन्हें मिले। मतलब जमात जब्त होने वाली स्थिति जो होती है वो हो गई इनकी। और मैं तो चैलेंज करता हूं कि वो अपने जो इनका गृह जिला है, आपके नेता राकेश टिकैत का
वहां से चुनाव अगला लड़के दिखाएं तो मैं मान लूंगा कि वाकई में किसान नेता वो है और किसान उनके साथ है। अगर उनकी जबान जब्त ना करा दे तो देख लेना, सारा किसान आपसे खिलाफ है, आपके साथ किसान कोई है ही नहीं। आप तो सिर्फ दलाली कर रहे हो बैठे, विदेशी पैसा मिल रहा है, कुछ मंडी व्यापारी है वो पैसा दे रहे हो, कांग्रेस दे रही है। आप वैसे ही खाली पीली आप क्यों अपने आप किसान आपको शो कर रहे हो? झूठ का पुलिंदा लेके आके मीडिया पे बैठ जाते हो, झूठ बोलने के अलावा आपके पास एक शब्द नहीं होता है। हमने किसानों को जो दिया है वो 70 साल में कांग्रेस कभी दे नहीं पाई है। एमएसपी हमने बार बार बढ़ाई है, खुली मंडियां जो आपने। ठीक है, मुद्दे पर वापस आते हैं कैप्टन आई सिंह मुद्दे पर वापस आते हैं क्योंकि समय भी कम है। मुद्दे पर वापस आते हैं। क्या अब हम आगे जो भी समय बचा है संसद की कार्यवाही का, क्या हम कोई तस्वीर ऐसी देख पाएंगे कि विपक्ष और सत्ता पक्ष सहमति के साथ बिलों को पास कर रहा है? आज बहुत अच्छी तस्वीर क्योंकि दिखी है। बिल्कुल काजल जी, हमारी शुरू से ही मंशा ये रही है कि विपक्ष आए, सदन को चलने दे और सदन के माध्यम से वो हमसे बहुत तीखे सवाल पूछे। जो भी जनता से जुड़े हुए बिल है उनमें जितने वो कठिन सवाल हमसे पूछ सकते हैं पूछे और हम उनका जवाब देंगे, उसका निराकरण निकालेंगे। मगर चर्चा तो सदन में ही होगी ना, तो ये सदन नहीं चलने देंगे तो ये बिल कैसे पास होंगे? मैं इनके जवाबों से कहीं मना नहीं कर रहा हूँ कि जवाब नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, मगर चर्चा तो करो। मगर ये सदन में आके चर्चा करना ही नहीं चाहते। इनका तो सिर्फ एक ही बन चुका है कि सदन को चलने नहीं देना है, बाहर हो हंगामा मचाना है। किसी तरह से ये जो है ना, ये दिखा रहे हैं कि देखिए हम किस तरह से हो हंगामा मचा रहे हैं। ये सिर्फ अब फोटो छपाऊ जो होते हैं ना, फोटो छपाऊ नेता कांग्रेसी बन चुके हैं। इससे आगे ठीक है, लास्ट रिएक्शन कुंवर सिंह जी का भी। ठीक है, लास्ट रिएक्शन कुंवर सिंह जी आपका भी। ऐसी तस्वीर देश दोबारा भी देखना चाहता है जो सहमति आज विपक्ष की तरफ से बनी है, देख पाएंगे क्या? मैं एक सवाल करना चाहता हूं। ठीक है। अगर मोदी सरकार में हिम्मत है तो लोकसभा और राज्यसभा के आंकड़े पेश करे कि विपक्ष ने ये सवाल किए हैं, ये प्रस्ताव लाए हैं, ये इनने प्रस्तुत किया है और कितना इनको समय दिया गया। दुनिया को चूतिया ना बनाए। भाषा की मर्यादा बनाए रखें कुंवर सिंह जी, भाषा की मर्यादा बनाए रखें। आप न्यूज चैनल पर बोल रहे हैं, आप भाषा की मर्यादा बनाए रखें क्योंकि न्यूज चैनल पर इस समय बात कर रहे हैं। पूरा देश आपको सुन रहा है, पूरा देश आपको सुन रहा है। आप अपनी बात रखिए, लेकिन भाषा पर जरा संयम बनाए रखिए। मैं कहना चाहता हूं ना कि हिम्मत है तो सामने आइए ना लेके रिकॉर्ड को। सिर्फ पर्दे के पीछे से आप राजनीति करना चाहते हैं। आप लोकसभा और राज्यसभा के रिकॉर्ड प्रस्तुत कर दीजिए और जनता के सामने रोना बंद करिए। आपको रोने के लिए जनता ने नहीं चुना है। और सिर्फ प्रचार मंत्री मत बनिए। 90 साल की मां को लाइन में खड़े होकर और प्रचार जो करते हैं, पैर छूने की फोटो खिंचवा के दुनिया को दिखाते हैं, वो बंद करिए। रिकॉर्ड के साथ आइए। विपक्ष आज भी तैयार है और विपक्ष अपनी बात पर इसलिए अड़ा है कि लोकतंत्र में विपक्ष को आता है। आप तो सिर्फ प्रचार, नौटंकी और रोने धोने का काम करते हैं। हत्या करने वाली तो कांग्रेस ही है। लोकतंत्र की हत्या जिसने जातिवाद की राजनीति करी है। आपने लोकतंत्र समझा कहाँ है? आप क्या जानो लोकतंत्र? आप तो सिर्फ एक जाति विशेष को लेकर राजनीति कर रहे हो। अरे तुम्हारे पीएम ने कहा था, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने कहा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैप्टन आई सिंह, बहुत शुक्रिया आपका। कुंवर सिंह जी बहुत शुक्रिया, समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। ओबीसी संशोधन बिल सहमति के साथ पास हुआ है, लेकिन आज जो सहमति सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बनी है, देश इस तस्वीर को बार बार देखना चाहता है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार।